انسان سائنٹسٹ تو بن سکتا ہے, انجینئر, اعلیٰ آفیسر تو بن سکتا ہے, اعلیٰ پائے کا دنیاوی انسان تو بن سکتا ہے, مگر یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں. اس کتاب کو لکھوانے کے لیے خدا نے 40 لوگوں کا چناؤ کیا. 32 وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرانا عہد نامہ لکھا, اور 8 وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا عہد نامہ لکھا. اور 1600 سال میں خدا نے حصہ بحصہ, طرح بطرح, رویا کے ذریعے سے, خواب کے ذریعے سے, جگہ بجگہ اپنے مقدسین سے یہ کلام لکھوایا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, 1189 باب, 31,102 آیات, 7,88,258 الفاظ. لوگ کہتے ہیں بائبل بدل گئی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہر جگہ, ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں, بائبل بدلی نہیں, بدلا دیتی ہے, جانور سے انسان بنا دیتی ہے. زوردار تالی اس کلام کے لیے. یہ خدا کے زبان مبارکہ کا نکلا ہوا ہر ایک لفظ روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا. یہ کتاب ہمارے لیے مقدم ہے, مقدس ہے. یہ کتاب شلفوں کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں, یہ رکھ کے سجدے کرنے کے لیے نہیں, یہ جھاڑ پہنچ کے چومنے کے لیے نہیں. یہ کتاب میں آپ کو بتاتا چلوں مذہب ہے, یہ خدا ہے کتابی شکل میں. اس لیے میرے عزیزو, یہ کتاب خدا کا کلام الہام سے لکھا گیا. میرے عزیزو, آج عہد جدید میں سے خداوند نے جو ہمیں کلام دیا, عہد عتیق میں سے یرمیہ کا صحیفہ, اس کا 8واں باب, 18ویں سے 22ویں آیات مقدسہ, 18ویں سے 22ویں آیات مقدسہ. کل بائبل مقدس میں 17 صحائف ہیں, 17 صحائف ہیں, جن میں 12 انبیاء اصغر چھوٹے صحیفے جو چھوٹی کیٹیگری میں نبی آتے ہیں, اور 5 انبیاء اکبر یعنی بڑا درجہ جو رکھنے والے نبی ہیں, ان میں صحائف آتے ہیں جن میں یرمیہ کا بھی نام ہے بڑے نبیوں میں. اور لفظ یرمیہ کا مطلب ہے یہوہ چھوڑتا ہے یا خدا چھوڑتا ہے. یرمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یرمیہ رونے والا نبی ہے, آنسو بہانے والا نبی ہے. اپنی قوم, اپنی کلیسیا, اپنے لوگوں کے لیے روزے میں ٹھہرنے والا, رونے والا, آنسو بہانے والا نبی ہے. آج کے دور میں بہت کم کاہن ملتے ہیں, بہت کم خدام ملتے ہیں جو کلیسیا کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں, جو کلیسیا کے لیے روزے میں ٹھہرتے ہیں, جو کلیسیا کے لیے روتے ہیں اور ساری رات سجدے کرتے ہیں, ساری رات روتے ہیں, اے خداوند میری کلیسیا دکھ میں ہے. پر یہ نبی روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, درد رکھتا ہے. یہ وہ نبی ہے. آئیں, پڑھیں گے, سنیں گے, اور آج سیکھیں گے اور تقویت پائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا, یرمیہ کا صحیفہ 8واں باب اور 18ویں سے 22ویں آیات مقدسہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے روغن بلسان. روغن بلسان آج کا جو ہمارا مضمون ہے. اگر آپ میں سے کوئی بہن بیٹی پڑھنا چاہے, بھائی پڑھنا چاہے تو ضرور مائک لے لیں, تو ضرور تلاوت کریں, ایک ایک آیت کر کے ضرور پڑھے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا.
हालेलुया। 18वीं आयत से एक एक आयत करके ब्रदर पढ़नी है। काश कि मैं गम से तसल्ली आपकी तवज्जो चाहता हूं। गम इतना बड़ा है, कलीसिया में दुख इतना ज्यादा है, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, बीमारियां, टेंशनें इतनी ज्यादा हैं। खुदा का बंदा कहता है काश के मैं गम से तसल्ली पाता, पर तसल्ली मिल नहीं रही। गम इतना बड़ा है, लोग मुब्तला हैं दुखों में, मुसीबतों में, गमों में, परेशानियों में। काश के मैं गम से तसल्ली पाता। जी, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया और मेरा दिल गम के मारे, दुख के मारे सुस्त हो गया। देख मेरी बिनते कौम के नाला की आवाज दूर के मुल्क से आती है। देख मेरी बिनते कौम के नाला की आवाज, उनके बहनों की आवाज। पंजाबी च कहंदे वैन पाना, जो कोई वफात पा जाता है तो बीबियां भैणां वैन पांदियां ने। उनके बहन, उनके आहो नाला, उनके गम, उनकी चीखों पुकार के दुख की आवाज दूर के मुल्क से आती है। कहता है जब वो मेरे कानों में गूंजती है तो मैं तसल्ली नहीं पाता, मैं गम से नडाल हो गया, मेरा दिल मुझ में सुस्त पड़ गया। मेरी बिनते कौम, लफ्ज बिनत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बेटी। अपनी कौम को बेटी कह के पुकार रहा है, बेटी का लक़ब देता है। मेरी कौम, मेरी बेटी। कौम का मतलब है कलीसिया या जमायत, ईमानदारों की जमायत, या जमायत भी आप कह सकते हैं। कौम वैसे कोई भी कौम, उसको आप कौम कहते हैं यानी जमायत, लेकिन यहां पर आप कलीसिया कह सकते हैं जो मतन के मुताबिक। हालेलुया। जी सर। क्या खुदावन सयून में नहीं? सवाल करता है, पहला सवाल करता है, कहता है क्या खुदावन सयून में नहीं? अगर है तो कलीसिया गम में क्यों है? आहो नाला क्यों करती है? दुखों में क्यों है? सवाल करता है, कहता है अगर खुदा है तो लोग दुखों में क्यों हैं? मेरी कौम परेशानियों में क्यों है? क्या खुदा सयून में नहीं? सयून एक पुराना पहाड़ जहां पे पुराना यरूशलेम शहर यरूशलेम बसा हुआ था। सयून कहता है सयून के ऊपर जो शहर है, वहां पे जो कौम बसी हुई है, वहां के जो लोग हैं वो दुख में क्यों हैं? क्या वहां पर खुदा नहीं? उनका मालिक, उनका आका मौजूद नहीं? अगर है तो लोग दुखों में क्यों हैं? बहुत सारे लोग दावा करते हैं काहिन होने का, खादम होने का। कलीसिया का रहनुमा कौम के लिए, कलीसिया के लिए रूहानी बाप की हैसियत रखता है। वो खुदाम आज भी जो फास्टिंग में ठहरते हैं, कलीसिया के लिए दर्द रखते हैं, आंसू बहाते हैं, उनकी कलीसिया बहाल है, उनकी कलीसिया खुशहाल है। और वो लोग, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा, जो पेट के खादम है, जो अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। कलीसिया बदहाल है, परेशानी में है, दुखों में है। खादमान कोई परवाह नहीं, अपने पेट की अपनी गड्डी, अच्छी गड्डी लैनी है, दही प्रॉपर आनी चाहिए, हदिया प्रॉपर मिलना चाहिए। घर पहुंच जाते ने भी इस बारी दही अखी लेट हो गई, बाजी की गल, कोई मसला तो नहीं बन गया, माजरत से। लेकिन यहां पर खुदा का बंदा आंसू बहा रहा है, दर्द रखता है कौम के लिए, दुख रखता है अपनी कलीसिया के लिए। कहता है क्या खुदा सयून में नहीं? हालेलुया। क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? क्या उसका बादशाह वहां पर मौजूद नहीं? सियासी लेवल पे भी कहता है क्या वहां का MNA MPA नायब नाज़म जो वहां का कारिंदा है वो नहीं? रूहानी तौर पे भी हम इसको लेते हैं ईमानों में, क्या वहां पर खुदा का खादम नहीं? अगर है तो वो लोगों के घरों में जाके क्यों नहीं पूछता? आज भी ऐसे खादम हैं जो पूछते हैं, जो कलीसिया के दुख को अपना दुख समझते हैं, कलीसिया के दर्द को अपना दर्द जानते हैं।
अपनी परवाह नहीं करते, अपने बच्चों के लिए और कलीसिया के बच्चों को देखते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनका ख्याल करते हैं जैसे भी हैं। पावे को गरीब ही खादम है, मगर है वो खुदा का खादम तो वाकई वो अपनी भेड़ों को देखता है, उनके पीछे जाता है कि क्या वो किसी दुख में तो नहीं। जी, उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना माबूदों से मुझको गजबनाक किया। जवाब आता है आगे से जवाब मिलता है। जब वो गिला कर रहा है, जवाब क्या मिलता है? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से मुझे गजबनाक किया और गैर मबूदों के पीछे भागे। सवाल करता है। आज भी अफसोस से ये कहना पड़ता है, बहुत सारे मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में ऐसे लोग हैं जो गैर मबूदों के पीछे भागते हैं। गैर मबूदों के पीछे भागने वाला का क्या होगा जी? गम कटेगा नहीं, गम बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग हाथ की तराशी हुई मूर्तों के आगे झुकते हैं, तस्वीर, हाथ की बनाई हुई तस्वीर के आगे, वही जो जीसस फिल्मों के करैक्टर हैं, वही घरों में सजा के, वो जो हीरोज हैं उनको घरों में सजा के समझते हैं शायद ये जीसस है, शायद ये मुकद्दसा मरियम हमारी यस्सु की माँ हमारी माँ है। उसके आगे आज भी बहुत सारे लोग झुकते हैं, गलत फहमी का शिकार है। उस दौर में भी, हर दौर में ऐसा था। जवाब आता है, उन्होंने क्यों तराशी हुई मूर्तों और बेगाना माबूदों से मुझे गजबनाक किया है। लेकिन इसके अलावा भी लोगों ने बहुत सारे खुदा बना रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने मोबाइल को खुदा बना रखा है, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट को, फेसबुक को अपना खुदा बना रखा है। वो देख गई सजदे करते रहते हैं हर वक्त। बहुत सारे लोगों ने धन दौलत को अपना खुदा बना रखा है, अपने बिजनेस को, रुपए पैसे को, अपने महबूब को, लोगों को, पीरों फकीरों और बहुत सारे लोगों को अपना खुदा बना रखा है। हर दौर में ऐसा हुआ है। खुदा गिला करता है अपने बंदा से, कहता देख तू ये गिला कर रहा है, मगर इसकी रीजन ये है कि उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई, अपने हाथ से बना के मूर्त और बेगाना माबूदों से मुझे गजबनाक किया। गजबनाक, भड़काया, मेरे गुस्से को भड़काया, मेरे गुस्से को तेज किया। क्योंकि खुदा मौका देता है तौबा का। हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, हमें वो चीज देखनी चाहिए कि खुदा हमें बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। जी सर। फसल काटने का वक्त गुजरा। 20वीं आयत मुकद्दसा, फसल काटने का वक्त गुजरा। पंजाबी च असी पंजाबी लोग कहने वाडियां, गंदम की कटाई, उर्दू में गंदम की कटाई, पंजाबी में कहते वाडियां पै गई, गंदम की कटाई हो गई, फसल कट गई, उसको समेटा गया, वो गंदम निकली, उसका सीजन गुजर गया और तब भी फिर भी गर्मी के अयाम तमाम हुए। गर्मी के अयाम तमाम हुए, गर्मी खत्म हो गई, सीजन गुजर गया गर्मी का, फिर और हमने रिहाई नहीं पाई। पर हमने रिहाई नहीं पाई। वाटियां गुजर गई, कटाई का सीजन गुजर गया, गर्मी गुजर गई, पर असी अपने दुखों तो, परेशानियां तो, अपने गमां तो रिहाई नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? हमने सुना है, इसकी रीजन सुनिए क्यों रिहाई नहीं पाई। दुआ भी करी जानी, हदिये भी देने, सारा कुछ करना, पर अपने काम नहीं हो बड़े झगड़े बाप दादा दे। अब अवेयरनेस है, अब शऊर है, अब कलाम का शऊर है। घर घर में इंजील को पढ़ा जाता है, बाइबल को पढ़ा जाता है, सीखने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। उस वक्त लोग कम पढ़े लिखे थे, किताब बाइबल सिर्फ काहिन के हाथ में होती थी, बाकी लोग आमीन कहते थे। वो जैसी भी सुना रहा है, जिंदगी भी सुना रहे आमीन, लोगों को नहीं पता था। मगर अब हर एक बेटी, हर एक बेटा इसको समझता है,
बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंटरनेट के जरिए तफसीर हैं, कुतब हैं, टीचर्स हैं, घर घर में सीखने के सोर्सेज हैं। उस वक्त ये नहीं था कि लोग आमीन कर देते हैं, को गलत भी जिंदा भी सुना दे आमीन, ठीक है जी, शौक कर दे। बाबू जी आए, साढ़े काहन आए, साढ़े फादर जी, साढ़े पादरी साहब आए, महीना महीना इंतजार करते सन। पादरी कम होते थे, इलाके ज्यादा होते थे। एक इलाके की वारी तकरीबन 2 महीने बाद, जी 6 महीने बाद आती सी, तो लोग वेट करते होंगे सन कि क्यों बुजुर्ग ऐसे ही बुजुर्ग, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनको पता होगा। हुण तो एक एक गली च बहुत सारे खुदाम ने, खुदावन का शुक्र है, मैं ये कोई नेगेटिव नहीं गल कर रहा, ये हमारे पास मौका है सीखने का खुदा के कलाम को, और सीखेंगे तो पता चलेगा गलत क्या है और ठीक क्या है, राइट वे क्या है और रॉन्ग वे क्या है, बदी की राह कौन सी है, रास्तबाजी की राह कौन सी है। ये हमें बाइबल सिखाती है। और सीखना किससे है? अपने टीचर्स, अपने खुदाम, जो आपके पास खुदा के खुदाम है, खुदा ने आपको दिए कि आप इनसे सीखें, टीचिंग लें, ये आपके लिए दुआएं करें, ये आपको बड़े प्यारों मोहब्बत से सिखाएं, बच्चों को टीच करें, बड़ों को टीच करें। संडे स्कूल हैं, तरह तरह के वसाइल हमारे पास सोर्सेज हैं। हालेलुया जी सर। अपनी बिन्ते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ। अपनी बिन्ते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ। उनका दुख देख के मेरा हौसला टूट गया, मैं शिकस्ता हाल हो गया, मैं नडाल हो गया, मैं गम दुख में मुब्तला हो गया, क्योंकि मैं सारी सारी रात रोता रहता हूँ, आंसू बहाता रहता हूँ, सजदे करता रहता हूँ। आए खुदावन मेरी कलीसिया, मेरी कौम दुखों में है, मुसीबतों में है, रोता है, चिल्लाता है। बहुत सारे आज भी खुदा के ईमानदार लोग हैं जो रोते हैं अपनी कलीसिया के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, कि खुदावंद ये गिर चुके हैं, इन्हें उठा कर ये ईमान से बरगश्ता हो चुके हैं, वो उनके लिए आंसू बहाते हैं। आज भी ऐसे ईमानदार खुदा के लोग हैं जो पौधे को तैयार करते हैं, जब वो दरख्त बन जाता है, जब उसके फल का वक्त आता है, तो वो दरख्त भटक जाता है, वो बेफला हो जाता है, बेफल हो जाता है। तो जो माली होता है, लगाने वाला होता है, बढ़ाने वाला तो खुदा है। जो माली होते हैं वो फिर परेशान होते हैं, खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि खुदावन देख, हमने इसको कोशिश की, इसे लगाया, आपने बढ़ाया, और जब फल का वक्त आ गया तो ये बरगश्ता हो चुका है। वो रोते हैं, रोजे में ठहरते हैं, दुआओं में ठहरते हैं। यर्मिया की तरह आज भी गयूर खुदा के खादम हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं है, आज भी बहुत सारे ऐसे सूरमा हैं जो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा खुदावन इसको वापस लेके आ, चर्च में, कलीसिया में, ईमान में। मैं कुड़ता रहता हूं और हैरत ने मुझे दबा लिया। जी सर। क्या जल्लाद में रोगने आखिरी है? जो मरकजी आयत है, आखिरी आयत हम 22वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं है? एक तो जल्लाद होता है वो जो फांसी देने वाला जल्लाद होता है, उसको भी जल्लाद कहते हैं। ये वो वाला जल्लाद नहीं है, ये जल्लाद इलाका का नाम है, ये एक जंगल का नाम है। और इस जल्लाद में रोगने बलसान के दरख्त बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आज भी अरब के बहुत सारे ममालिक, मसलन ईरान, इराक, तेहरान, सऊदी अरब और बहुत सारे अरब ममालिक में रोगने बलसान के दरख्त पाए जाते हैं। रोगने बलसान, रोगन का मतलब है चिकनाई, घी, ऑयल या तेल। बलसान का मतलब है शिफा याफ्ता। कुल मिला के इसका मतलब बनता है शिफा याफ्ता तेल। और दरख्त होता, दरख्त के अंदर भाला मारा जाता,
भाले से जो गूंद निकलती, उस गूंद से तेल तैयार होता, उस तेल को वो रोगने बलसान का नाम देते। और ये तेल बहुत सारी बैरूनी और अंदरूनी बीमारियों के लिए मुफीद होता। उस वक्त ये तेल बड़ा फेमस था। और सवाल करता, कहता क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं? मेरे जीजो, ये तो था पुराने ऐदनामे का रोगने बलसान। नए ऐदनामे का रोगने बलसान मसीह यीशु की सलीब और उस पे जो यीशु मसीह को लटकाया गया, उसके अंदर जो भाला मारा गया, भाले से जो लहू निकला, उस लहू से मैंने और आपने, सारी कौमों कबीलों ने शिफा पाई, रिहाई पाई, जिंदगी पाई, निजात पाई और कसरत से निजात पाई। हालेलुया! जोरदार तालियां यीशु उसके रोगने बलसान, नए ऐदनामे के रोगने बलसान यीशु के लहू के लिए जोरदार तालियां। ये मेरे हाथ में जो बाइबल, इसके ऊपर क्रॉस बनी हुई है। कभी आपने सोचा है ये क्रॉस क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं? ये क्रॉस, वैसे तो स्लीप जो क्रॉस है एक तरह की नहीं है, बहुत सारी टाइप्स की हैं। मगर हमारा ईमान है, अकीदा है कि जिस स्लीप या क्रॉस पे यीशु मसीह का बलिदान हुआ वो कुछ इस किस्म की थी। हमारा ईमान है कि 100% यकीन है वो इस किस्म की थी, ये शेप थी। ऐसा ही है ना? हमारा ईमान है कि ये क्रॉस थी। आपने कभी गौर किया ऐसे है इसकी शेप? तो आपने कभी गौर किया इसका क्या मतलब है? ये गौर से मेरी तरफ देखें। ये सुनने और देखने वाली बात है। ये जो राइट साइड है, मेरा राइट हैंड है, ये यूं समझे आप, ये क्रॉस है। खुदा माफ करे, मैं इस लायक नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्रॉस है। ये जो मेरा राइट हैंड है, इसका मतलब कि यीशु ने जो पीछे के जमाना के आदम से लेके यीशु तक लोग थे, उनके लिए बलिदान दिया। और ये हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा, इसके मीनिंग्स हैं यीशु के दौर के जो लोग हैं, उस वक्त के जो प्रेजेंट के लोग थे, उस वक्त के लोग, उनके लिए भी यीशु ने बलिदान दिया, उनके लिए भी लहू बहाया। कितने जमाने हो गए? और ये जो लेफ्ट साइड है, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब है आने वाले कौमों, कबीलों, जमानों के लिए, आने वाली नस्लों, आपके लिए, आपके बच्चे, उनके बच्चे और सारी नेशंस के लिए यीशु ने लहू बहाया। जोरदार तालियां यीशु की। ये ऐसे ही इसको मत समझे, इसके बड़े मीनिंग्स हैं। वैसे तो स्लीप के ऊपर बोला जाए तो बहुत गहरा इल्म है, स्लीप के ऊपर गहरी तालीम है। मगर मैं शॉर्ट मीनिंग्स में आपको बताया कि क्रॉस जो स्लीप है, जो हम समझते हैं कि यीशु इस किस्म की स्लीप पे हुआ, मर के जिंदा हुआ, उसके कुछ इस किस्म की भी मीनिंग्स हैं कि यीशु ने पिछले ज़माना के लिए, प्रेजेंट उस दौर के यीशु के ज़माना के लिए, फिर फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए भी यीशु ने लहू बहाया। सो आज का रोगने बलसान ना सिर्फ यीशु के दौर के लिए, बल्कि आदम से लेके यीशु तक जितनी कौमें, कबीले, नबी, पैगंबर, मुकद्दसीन, रसूल आए, सब के लिए बहाया। उस दौर के लोगों के लिए और आने वाले लोगों के लिए भी आज का रोगने बलसान मौजूद है। जो ईमान से उसकी स्लीप के नीचे आता है, वो ईमानी तौर पे उसके रोगने बलसान लहू को ले लेता है। हमेशा की जिस्मानी शिफा, रूहानी जिंदगी और नजात का वारिस बन जाता है। एक दफा फिर जोरदार ताली इस काम के वसीला से मुझे और आप सबको खुदा करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। आए अपनी आंखों को बंद करें। आए, उसने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। उसने हमारे लिए वो बंदोबस्त किया जो आज भी कौमें, कबीले, उम्मतें, अहले लुगत उस सुकून, इत्मीनान की तलाश में हैं।
اس نے کہا بہت سے تھکے بیماندے لوگوں میرے پاس آؤ اور وہ روغن بلسام جس سے شفا ملتی اس نے مجھے اور آپ کو دے دیا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے. آئیں چل ہمیں دعا کریں گے. آئیں اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کریں گے. ہاللویا. خداوند پاک خدا تیری تمجید کرتے ہیں, تیری تمجید کرتے ہیں, تیرے قابل کے تیرے ممسو کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں, ان کے گھرانے کے لیے, ان کی فیملی کے لیے تیری سلامتی, ان کی کلیسیا